Hello students. In the last video we have seen what is the formula of finding the median. Today we will see some examples regarding to that, how to apply that formula. Here I have written one example. See this carefully. Find the median of the following data. As usual, you know that very well. Here there will be two columns. Means in the question only two columns will be given to us. Those columns we have to use, and by using those columns we have to prepare one table that will be less than type or more than type. Generally, before that I told you in the question only they will give us use less than type cumulative frequency, use more than type cumulative frequency. If in the question this is not given, use less than type or more than type, then generally you use less than type cumulative frequency. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके. जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, तो क्या करना है, हमें लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करनी है. ओके. जनरली तुम लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पैटर्न चूज़ करो और वो यूज़ करो. ओके. अभी ये देखो क्वेश्चन दिया है, अभी इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है. तो इसका हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल कैसे बनाना है? एज यूजुअल जो इधर दिया है क्वेश्चन में, जो information हमें दी है, that same information I have copied here, and now I am going to show you. Yesterday means in the last video we have discussed how to find out the less than type cumulative frequency, because in this question that less than type or more than type cumulative frequency we have to use here, that is not given. That's why here we will find the less than type cumulative frequency. Okay, generally you try to use that one only. In the last video I told you how to prepare less than type cumulative frequency table. By using that method only we will find out first of all the table. Table means what? Already this is given to us. We will find out this column, and by using this column only we will try to find out the values of, we know that formula, median is equal to L plus in bracket n by 2 minus C dot F divided by F into H. In this we have to find out L, N, C dot F, F and H. Then how to find out those all other values? Those all things we will discuss now. Listen and try to understand. Everyone you focus over here, everyone you try to understand, then you will come to know that. First of all we will find out the less than type cumulative frequency. Okay, table. First of all we will find out what we are doing over here. First of all we are writing this number as it is, first number. Okay, पहला जो नंबर होता है वो एज इट इज़ हम लिखते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऐड करते जाते हैं. 5 + 3 8. एडिशन कैसे होती है मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. 8 + 4 12. एम राइट? 12 + 3 15. 15 + 3 18. 18 + 4 22. 22 + 7 29. 29 + 9 29 + 9 38. 38 + 7 38 + 7 45. 45 + 8 53. ओके, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये जो एडिशन है वो एडिशन हमने लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किया, अभी तो ऊपर से नीचे हमने एडिशन की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, ये एडिशन अगर तुम्हारी राइट आ रही है, ये 29 है. ओके, थोड़ा सा डार्क करता हूँ तो समझ में आएगा. ये 29 है. 22 + 7 29. गॉट आइडिया? ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ L, देन C dot F, N by 2 एंड F एंड H. ओके, कैसे फाइंड आउट करना है देखो. अभी मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ. एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है. पहले हमें ऐसा टेबल बनाना है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिखना है. After that what we are going to do, we will find out first of all, look here, this value which we got here, this 53 is nothing but, I will write here this is known as n. n is equal to what? 53. इसको क्या बोलते हैं? n. इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो आंसर करेक्ट आना चाहिए क्योंकि वो n ही डिसाइड करता है बाकी की सारी वैल्यूज. कैसे डिसाइड करता है देखो. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट हियर. n we got means this value is known as n. इधर जो आंसर आता है फाइनल वो n बोलते हैं. therefore n by 2 that is equal to 53 by 2. therefore n by 2 is equal to 53 divided by 2. सॉरी, समझो मैंने क्या किया. देखो ये जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? n.
अभी n/2 लिखा तो n की वैल्यू 53 डिवाइड बाई 2, तो n/2 क्या आएगा देखो, डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, रिमेन 1, 2 6 जार 12, रिमेन 1, 2 5 जार 10, यानी कि n/2 क्या आ गया देखो 26.5. 26.5. Here first of all we have to find out the value of L. Here we have to find out value of L. तो L की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है देखो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है देखो, ये जो n/2 की वैल्यू हमें जो मिली है उस वैल्यू से मीडियन क्लास फाइंड आउट होता है. ओके, ये जो n/2 की वैल्यू है, ये n/2 की वैल्यू हमें इस कॉलम में देखनी है. किधर हमें क्या है वैल्यू 26.5, इधर हमें देखना है 26.5 किधर है देखो, 22 29 38, 26.5 किधर भी नहीं है. ओके, 26.5 किधर भी नहीं है. अगर वो नंबर नहीं है तो उसके जस्ट ग्रेटर दैन नंबर कौन है क्या देखना है, उससे क्या जस्ट ग्रेटर दैन नंबर. ओके, अभी देखो 22 ये कितना नंबर है 26.5, इधर देखो ऊपर तो सारे स्मॉल नंबर्स हैं. हियर 22 नंबर इज देयर, 22 इज लेस दैन 26.5, देन विच इज जस्ट ग्रेटर दैन 29. ओके, क्योंकि 38 उससे भी ज़्यादा ग्रेटर होगा, तो जस्ट ग्रेटर दैन नंबर कौन सा है 29. तो ये जो 29 है इसके ठीक सामने हमें आना है. इधर देखो 29 के सामने कौन सा क्लास है 60 to 70. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर मार्किंग करता हूँ. देखो कौन सा क्लास आ गया, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. जस्ट ग्रेटर देन क्लास कौन सा है, जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कौन सी है 29, तो उसके सामने जो क्लास है 60 to 70, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास. ये है उसकी फ्रीक्वेंसी. समझ में आ रहा है. तो अभी हम बाकी का मैटर लिखेंगे. देखो कौन सा क्लास हमने मीडियन क्लास सिलेक्ट किया है 60 to 70, उसके पीछे रीजन क्या है, विच इज जस्ट ग्रेटर दैन दिस n/2 29, तो 60 to 70. समझ में आ रहा है. ओके, तो हम इधर लिखेंगे नाउ, देखो ध्यान से, नाउ 60 to 70 is called the median class, is called the median class. This 60 to 70 is called the median class. Got idea? Okay. अभी मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कौन सा लोअर लिमिट है 60, तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 60, क्योंकि कल मैंने तुमको बताया था L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ओके, अभी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखो C.F. C.F क्या बताया था मैंने तुमको, C.F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि क्या, पिछला. अभी देखो ये है मीडियन क्लास, मैंने मार्किंग करके तुम्हें दिखाया, तुम्हें मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये है मीडियन क्लास. उसके पीछे का क्लास कौन सा है 50 to 60, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है देखो 22. समझ में आ रहा है. तो C.F की वैल्यू क्या हो गई 22. समझे, C.F इज इक्वल टू 22. देन F, वी विल फाइंड आउट F यानी कि क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. इसीलिए मैंने कल सेपरेट एक फार्मूला ओनली ही बताया था. ओके, मेरा स्मॉल वीडियो बनाने का मकसद वही था, फार्मूला तुम्हारे भेजे में फिट हो जाए. F यानी कि क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. कितनी फ्रीक्वेंसी इधर 7, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया 7. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट H कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी इधर फाइंड आउट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यू कैन फाइंड ईजिली क्लासेस लोअर लिमिट, डिफरेंस इन बिटवीन लोअर लिमिट और डिफरेंस इन बिटवीन अपर लिमिट. अभी डिफरेंस इन बिटवीन अपर लिमिट ले लो, ये दो क्लासेस है 0 to 10 एंड 10 to 20. डिफरेंस देखो 20 एंड 10, 20 और 10 में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो H इज इक्वल टू क्या आएगा 10. समझे. अभी देखो सारी बातें हमें मिल गई, सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई. कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें चाहिए थी फॉर्मूले के लिए, n/2 चाहिए था, n/2 मिल गया. ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए था L चाहिए था, L भी मिल गया.
सी डॉट एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया. अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट इनटू द फॉर्मूला एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीडियन. ओके, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n by 2 minus c dot f divided by h divided by f sorry into h. Understood what I did? Only I have written formula. Formula क्या है? L plus in bracket n by 2 minus c dot f divided by f into h. Put all values. What we are getting? See, median is equal to L की वैल्यू क्या है देखो 60 प्लस n बाई टू की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 26.5 माइनस सी डॉट एफ क्या है देखो -22 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू क्या है 7 और एच की वैल्यू क्या है 10. तो इसको इधर मैं लिखता हूँ देखो मल्टीप्लाई बाय 10. गॉट आइडिया? नेक्स्ट ओके, मीडियन इज इक्वल टू, अभी हम सॉल्व करेंगे 60 प्लस देखो 26.5 माइनस 22 क्या आंसर आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय कितने हैं 7 इंटू कितने हैं 10. देन मीडियन इज इक्वल टू 60 प्लस, अभी हम ये सॉल्व करेंगे क्या आता है देखो 4.5 इंटू 10 करेंगे पहले तो 45 डिवाइडेड बाय 7 आएगा. ओके, देन मीडियन इज इक्वल टू 60 प्लस 7 1 जार 7 7 6 जार 42.76 जार 42. एम आई राइट? ओके, रिमेन 3 7 4 जार 28. ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा. हम इधर स्टॉप करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, उसके आगे लेना है तो भी ले सकते हो, नहीं तो इधर भी स्टॉप कर सकते हो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, मीडियन इज इक्वल टू 60 प्लस 6.4 यानी कि क्या 66.4. तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मीडियन इधर आ गया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन 66.4. समझ में आ गया? ऐसे हमें करना है. ओके, ये हो गया एक एग्जांपल. और एक एग्जांपल मैं इधर तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा. थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जांपल देखो. अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल was conducted. The following data was obtained. ये है हमें दी हुई इंफॉर्मेशन. अभी देखो ध्यान से देखो, इधर कितनी गर्ल्स है टोटल 51 गर्ल्स है. ओके, एग्जाम्पल में कैसे डिफरेंस होता है देखो, मैंने तुमको बताया कि इसमें स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल चेंज है. एग्जाम्पल में क्या है देखो, ये क्लासेस दिए हैं हमें लेस देन 140 लेस देन 145. ओके, तो लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. लेकिन ध्यान से देखो इधर ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स का कॉलम दिया है ये है टोटल, ये फाइनल नंबर है 51. ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स का कॉलम दिया है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा फ्रीक्वेंसी में लास्ट नंबर कभी भी जो टोटल नंबर है उतना नहीं होता. ओके, फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर यानी कि इधर 51 है तो इधर 51 कभी भी नहीं होता. तुम पिछला एग्जांपल देख लो. ओके, इधर देखो, इधर 8 था और फाइनल आंसर क्या आ गया 53 आ गया. तो तुम्हें मैं डिफरेंस क्या बताने जा रहा हूं देखो, इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है. तो इस एग्जांपल में क्या है देखो, इस एग्जांपल में ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये देखो ये फाइनल नंबर 51 है और इधर टोटल गर्ल्स भी 51 है, यानी कि n की वैल्यू ऑलरेडी इधर दी है. तो n की वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम्पल में नहीं दी जाती, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है. अगर दी है तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये हमें पता होना चाहिए. ओके, अभी देखो पहले क्लासेस जो दिया है लेस देन 140 लेस देन 145, इस क्लासेस को हम
इस क्लासेस अगर ऐसे हमने डायरेक्टली लिख दे तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, इधर तो लोअर लिमिट की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। तो पहले इस क्लासेस को, ये जो क्लासेस है, इन सारे क्लासेस को हम क्या कर देते हैं, एक सुटेबल फॉर्म में लिख देते हैं। सुटेबल फॉर्म में यानी कि क्या, हमारे कन्वीनियंस फॉर्म में, हमारे कन्वीनियंस फॉर्म में, यानी कि इधर हम चेंजेस करने वाले नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासेस ओनली वी विल राइट। हाउ टू राइट, लुक हियर, पहला क्लास देखो, लेस देन 140, तो वही जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ओके, लेस देन 140 यानी कि क्या, बिलो 140। ओके, आगे का क्लास देखो, लेस देन 145 दिख रहा है, लेस देन 145, इधर देखो बिलो 140 हो गया। तो आगे का क्लास जो है, तो आगे का क्लास हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इधर क्या दिया है, बिलो लेस देन 145 दिया है, तो हम इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 140 टू 145। अब तुम बोलोगे 140 किधर से आ गया, इधर देखो, इधर जो इस क्लास में जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो बिलो 140 होंगे, यानी कि इस क्लास में 140 के आगे और 145 के पीछे आएंगे। इधर देखो, लेस देन 145 यानी कि इसके पीछे और इसके आगे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 145 तक ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। समझ में आ रहा है, 145 तक यानी कि 139 तक इधर आ गए, तो इधर 140 से शुरू होंगे, लेकिन 140 से शुरू होंगे यानी कि क्या, 145 से नीचे होंगे। लास्ट ईयर हमने देखा है। ओके, जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करते थे। समझ में आ रहा है। ओके, वैसे ही इधर बिलो 140 हो गया, तो 139 तक इधर आ गए, और इधर 140 से 145 के पीछे यानी कि 144 तक आएंगे। तो आगे का क्लास देखो 150, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 145 टू 150, इधर देखो 155, तो 150 टू 155 ये हमें लिखना है। ध्यान से देखो, लेस देन 160 यानी कि 155 टू 160। ओके, और लास्ट क्लास क्या है, लेस देन 165, तो 160 टू 165। समझे। अभी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कॉपी करेंगे एज इट इज़। इधर क्या दिया है 4, इसके सामने दिया है 11। ओके, अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो डायरेक्ट हम एग्जांपल शुरू करेंगे सर। ओके, फ्रीक्वेंसी की क्या ज़रूरत है, एफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही है। नेक्स्ट है 29, बाद में है 40, बाद में है 46, बाद में 51। ये कॉलम हमें दिया है, इसके हिसाब से ये कॉलम हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो लेस देन बोला था इधर, तो लेस देन टाइप है, तो पहले 4 वैसे का वैसा रहेगा। समझे। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होगा, देखो क्या करना है, देखो इस 4 को 11 से सब्ट्रैक्शन करो, क्या आएगा 7। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, अभी क्या करना है, देखो अभी हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम क्या करते हैं, इसमें ए मिला के ए लिखते हैं, इसमें इधर की फ्रीक्वेंसी मिला के ए लिखते हैं। तो इधर ऑलरेडी 11 दिया है, तो 11 हमें क्या करना है, किस में से सब्ट्रैक्शन करना है, 29 में से सब्ट्रैक्शन करो। तो 29 में से सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा 18। ए नंबर इसमें से सब्ट्रैक्शन, ए नंबर इसमें सब्ट्रैक्शन करो, अभी 29 माइनस 40, आंसर आएगा 11। इधर सब्ट्रैक्शन करो, 40 माइनस 46 6, 46 माइनस 51 5। हमें सारी फ्रीक्वेंसीज मिल गई, देखो। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एज यूजुअल ऑलरेडी हमें 51 यानी कि एन की वैल्यू मालूम है। ओके, हियर एन इज इक्वल टू क्या है 51, एन इज इक्वल टू 51, देयरफॉर एन बाय 2 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अभी डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, रिमेन 1, 2 5 जार 10, रिमेन 1, 2 5 जार 10, यानी कि आंसर क्या आ गया 25.5। आंसर कितना आ गया 25.5। अभी हमें इस क्लासेस में देखने हैं 25.5 आ गया,
तो इधर देखो 4 है, 11 है, 29 है, 25.5 इधर किधर भी नहीं है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके जस्ट ग्रेटर देन कौन होगा 29। तो 29 के आगे का क्लास कौन होगा 145। समझ रहा है 145 टू 150। तो ये जो 145 टू 150 है इसको हम क्या बोलेंगे अभी मीडियन क्लास। समझने के लिए मैंने डैश किया है, तुम्हें डैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। अभी ये मीडियन क्लास है तो इधर हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ 145 टू 150, 145 टू 150 इज कॉल्ड कौन सा क्लास बोलेंगे हम, इज कॉल्ड मीडियन क्लास, इज कॉल्ड मीडियन क्लास। देयरफॉर एल इज इक्वल टू, एल यानी कि लोअर लिमिट कितना है 145। ओके, उसके बाद सी डॉट एफ, सी डॉट एफ यानी कि उसके पीछे आना है। इधर देखो सी डॉट एफ कितना है इधर 11, डू यू अंडरस्टैंड, सी डॉट एफ इज इक्वल टू 11। then f is equal to what, frequency of the class, median class 18, what is f 18। ओके, h डिफरेंस देखो 50 150 टू 1 ये देखो 1 इधर 150 है अपर क्लास लिमिट, इधर अपर क्लास लिमिट क्या है 145, तो डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है। ओके, तो हम इधर लिखेंगे h इज इक्वल टू 5। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट n बाय 2 माइनस C डॉट F डिवाइडेड बाय F इंटू H। ओके, इंटू H। मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 145 प्लस n बाई 2 हमें क्या मिला था 25.5 माइनस C डॉट F 11 डिवाइडेड बाय F 18 इंटू H 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस, अभी सॉल्व करो 25.5 माइनस 11, ओके 25.5 माइनस 11, ध्यान में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ 25.5 माइनस 11 क्या आंसर आता है देखो। ओके 25 पॉइंट, इधर देखो हम सब्ट्रैक्शन करके, अब तुम्हें अभी सब्ट्रैक्शन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी अगर मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ध्यान से देखो क्या होता है तुम्हें समझ में आएगा। अभी मैं इधर लिखता हूँ देखो डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5। ओके, अभी देखो 0.5, आंसर क्या आता है 14.5, समझे 14.5। गॉट आइडिया व्हाट आई डिड, सिंपली आई डिड सब्ट्रैक्शन। ओके, सिंपली आई डिड व्हाट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे आंसर क्या आ गया 14.5। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखो क्या आंसर आएगा 72.5 डिवाइडेड बाय 18, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस, अभी डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ओके, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा देखो 4.03। देन मीडियन इज इक्वल टू, एडिशन करो 149.1
149.03 149.03। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे हमें इधर क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। गॉट आइडिया? ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द, और रिमेनिंग एग्जांपल्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।